Hello, students. Today we are going to read a very beautiful poem composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth. Before we start the poem, have a little introduction about the poet. Wordsworth, who lived from 1770 to 1850, was one of the first and most influential poets of the Romantic era. He shows a great affection for the beauty and power of nature. He was one of the major representatives of Romantic movement in the 19th century. According to him, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Wordsworth's meeting with the poet Samuel Taylor Coleridge in 1795 was an important event in his life. His publications, his collaborations with S.T. Coleridge's lyrical ballads started a new era of English literature. Wordsworth in his poetry, descriptive sketches, and Michaels and the excursions are some of his works in 1843. He became the poet laureate of England. As we all know, he was the worshipper of nature. To him, nature was his friend, philosopher, and guide. And he has proved all his philosophy in his very famous book, The Prelude. We shall discuss it later, that how he has proven that nature gives the peace and tranquility of mind whenever he becomes frustrated and depressed in the society. What society snatches from the peaceful mind, nature has ability to provide it, and so he was the worshipper of nature. We are going to read this poem. The poem is a sonnet. About the technical form of the poem, we should discuss that it is a sonnet. As we all know, that sonnet consists of 14 lines. The first 8 lines are called octave, and the second part 6 lines are called sestet. We have discussed also so many rhyme schemes of Petrarchan rhyme scheme, Shakespearean rhyme scheme. Here we see that it is a Italian rhyme scheme or Petrarchan rhyme scheme, that is A B B A, A B B A, C D C D C D. So before we start the poem, we should know that the poem was composed when our poet William Wordsworth was traveling to France with his sister Dorothy Wordsworth. And it was a very early morning, and they were standing on the Westminster Bridge, and he visited the city in the morning, and the peace and the tranquility of nature, the clean, the fine, the cool, the peaceful nature was attracted him, and he stopped there to observe, to feel the beauty of the city. In the poem, William Wordsworth is greatly moved and impressed by the great morning light of the city, London, and thus the poem describes beauty of morning. The poet says that one who is unaffected by such a charming natural beauty is soulless and heartless. So, now we will start the poem, and first of all, I will discuss how the rhyme scheme is A B B A B B A is visible in the poem. The octave that consists of 2 stanzas. Now we shall read the poem and find out the rhyme scheme in the poem. Earth has not anything to show more fair. Dull would be the soul who could pass by, a sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear. So we can see that here A and B. If we take fair as A, then pass by is B. Then also majesty, that is by and Y, it is also B. And fair and wear, the first and the fourth line, the last word of first line and fourth line is fair and wear, so we have taken it as A. Then the rhyme scheme stands A B B A. In the second stanza also, the beauty of the morning silent bare.
seeps towards domes, theatres and temples lies, open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Here we also see, what we see, the bear and air. The first line, the last word is bear, and the last word of fourth line is air. So it is also stands as a and a. And the second line, temples lie and to the sky, the both words are we take it as B. So the rhyme scheme stands A B B A. तो बच्चों आप लोगों ने ये समझ लिया कि इसका जो राइम स्कीम है वो ए बी बी एंड जो सेस्टेट में सी डी है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता कब लिखी थी। और आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वे फ्रांस जा रहे थे अपने बहन के साथ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, उस समय उन्होंने इस कविता को लिखा था। Earth has not anything to show more fair. Dull would be the soul who could pass by a sight so touching in its majesty. The city now doth like a garment wear. उस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे खड़े होकर उन लोगों ने देखा, और क्या देखा कि इससे ज़्यादा, पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा सुंदर और कुछ हो नहीं सकता है। और जो सोल्स, जो माइटी सोल्स, यानी जो अच्छे भले इंसान इस टाइम सो रहे हैं, उनसे ज़्यादा अनरोमांटिक, उनसे ज़्यादा डल, उनसे ज़्यादा हार्टलेस पर्सन, सोललेस पर्सन कोई हो नहीं सकता। अ साइट सो टचिंग इट्स मैजेस्टी, द सिटी नाउ डोथ लाइक द गारमेंट वियर। ये जो दृश्य है वो अपने चरम सुंदरता के अपने सुंदरता के चरम पे है। और जो सिटी है वो कौन सा गारमेंट पहनी है? पीस का, साइलेंस का, और एक शांति और एक सुंदर सेरेनिटी का एक ड्रेस पहना हुआ है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बियर, सुबह सुबह वाली जो सौंदर्य है इस शहर का वो कैसा है? शांत है और खाली सुनसान है। सीप्स टूवर्ड्स डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाइज, जो समुद्र में जो जहाज़ें चलती है वो बिल्कुल स्थिर, जल के ऊपर स्थिर जहाज़ें हैं। टूवर्ड्स डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स, जहाँ पे पूरे दिन भीड़ भाड़ होती है, कोलाहल होता है, वो बिल्कुल शांत शिष्ट पड़ा हुआ है। ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, जहाँ तक नज़र जाती है, चाहे वो मैदान हो और एकदम आसमान हो, हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है बिल्कुल शांत दिख रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, जो पोल्यूशन होता है दिन में, जो धुआं होती है, धूल होती है, जो हसल बशल होता है सिटी का, वो कुछ भी नहीं है और बिल्कुल शांत सुंदर सा दृश्य है यहाँ पे। अब हम लोग सेस्टेट में आएंगे, लाइन्स 9 से लेकर 14 तक। इसमें आप देख सकते हो फिर से राइम स्कीम। नेवर डिड समर ब्यूटीफुली स्टेप in his first splendor, valley, rock or hill, never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty hearts is lying still. तो यहाँ पे हम देखते हैं 9th लाइन जो है, steep and deep and asleep। ये steep, डीप, स्लीप को अगर हम सी मान लेते हैं तो हिल, विल एंड स्टील को डी मानेंगे, तो क्या होगा? सी डी। तो इन 6 लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है? नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, मैंने कभी नहीं देखा इतने सुंदर साफ सुथरे सूरज को पूरे किरण बिखरते हुए। इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल, अपने सूरज अपनी बिल्कुल सुबह सुबह वाली ताजगी के साथ, अपने वैभव के साथ वैलीज में, रॉक्स में और हिल्स पे अपने सौंदर्य को बिखेर रहे हैं। नेवर सो आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, कभी पहले मैंने इतना शांति, इतना शालीनता का मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, नहीं कभी मैंने देखा था। द रिवर ग्लाइडेथ एट इज ओन स्वीट विल, जैसे दिन होती है नदियों में कोलाहल शुरू हो जाती है मवेशियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, उसमें उसकी स्पॉन्टेनियस जो उसका फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। लेकिन जो रिवर है अपने बिल्कुल स्वीट विल के हिसाब से अपनी
इच्छा के हिसाब से कल कल करती हुई नदियाँ आगे बढ़ रही हैं। डियर गॉड द वेरी हाउस इज सीम एस्लीप। फिर वो कहते हैं उनको आश्चर्य होता है, सरप्राइज्ड होते हैं कि इस समय में भी इतने सौंदर्य को देखने के लिए इस शहर के कोई भी लोग उठे नहीं हैं। सारे लंबे लंबे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, जितने ऐसे बड़े बड़े घर हैं, उसमें सभी माइटी सोल्स सोए हुए हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट्स इज लाइंग स्टिल। इसमें जो इतने सभी सौंदर्य को समझने वाले इतने ज्ञानी लोग जो हैं, जो माइटी सोल्स हैं, वे सारे के सारे बिल्कुल इस सौंदर्य से अनभिज्ञ अपने घरों में शांत सोए हुए हैं। तो कितने वे लोग सोललेस, कितने हार्टलेस हैं जो इस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमेशा से ही प्रकृति की पूजा की है। उनके ज़िंदगी की सभी समस्याओं का, समाज से उनके दुख को, उनकी चिंता और उनके क्लेश द्वेष को, सबको उन्होंने प्रकृति में जाकर के एक माँ के जैसा, प्रकृति एक उनके बहुत ही प्रिय व्यक्ति के जैसा उनके हर किसी समस्याओं का समाधान किया है। और प्रकृति की गोद में वे बहुत ही अपनापन और बहुत ही शांति महसूस करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से भी उन्होंने सुबह के शांत वातावरण को, इंग्लैंड जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर के जो चरम सौंदर्य हो सकता है, शांति हो सकती है, वहाँ की खालीपन को उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पे व्यक्त किया है। बच्चों, आप लोगों ने अगर अच्छे से पोएम को सुना होगा तो आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे ही दे सकोगे। जैसे यहाँ पे जो है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द पोएट व्यूज द सिटी। कौन सा सिटी देखा? उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े के लंदन को देखा। कौन से समय को देखा? मॉर्निंग के समय को देखा। जो उन्होंने साइड देखा वो कैसा था? मैजेस्टिक था। अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ अ, ये जो पोएम है वो क्या है? एक सोनेट है। The person who passes without enjoying the beauty of London in the morning is dull soul. Who composed the poem upon Westminster Bridge? विलियम वर्ड्सवर्थ उत्तर होगा। तो इस तरह से आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़े होगे, अच्छे से सुने होगे, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग, समरी, हर कुछ मैंने इसमें ये कर दिया है, रिटन में दिया है, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए फिर से आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, अनडाउटेडली आप इसमें बिल्कुल फ्री हो करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका उत्तर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।